Okay, let's start. Please on your cam, everyone. On your cam. So last time you had to look at this figure. I think you made also this one reflection, right? Sure. So let's have a little bit of a recap. नहीं सिखाया पता है मैं Okay, Sanvi. Sanvi, can you tell me Yes, sir. where is the mirror? So M. M dash, right? Yes, sir. M dash is the mirror. Okay. Can you tell me which is this side of the mirror? So this is the reflected ray side. No, this is the silvered surface. Silvered or painted. And what about this side? Which is this side? So the smooth surface. It is known as reflecting surface. Yes, Siddharth. We have to draw this. No, you don't have to draw. You just have to. I think you made it last time. Yes, sir. Yeah. So you don't have to draw. You just have to answer the questions. Yes. Okay. Okay, Siddharth. Tell me what is point O? The point O is the incident. Point of The incidence. point of incident. Point of incident. Okay, Rashi, tell me where is the incident ray? Sir, AO. Yes, AO is the incident ray. Okay, Tanush, what is this black color line? ON.
N dash actually. Can you hear me, sir? Yeah, I can hear you. Sir, neutral. Neutral, no. It's No, not. wait. Normal. Normal, yeah. This is normal. Are we? Yes, sir. Are we? What is OB? Reflected ray. Very good. It is called reflected ray. Shubh? Shubh. Yes, sir. Can you show me angle of incidence? Sir, AON. Very good. Angle AON is the angle of incidence denoted by I. Tanish? Yes, sir. What is angle BON? BON. This angle BON. Anybody can answer. Angle of Angle of reflection. Angle of reflection denoted by R. Okay, so this is the process of reflection of light. Now, last question, what is the relationship between I and R, angle I and angle R? How are they related? Angle I is equal to angle R. Very good. Angle I is equal to angle R. This is one of the law of reflection. Okay, so now you are completely aware about what is reflection and how does it take place, and what are the laws which it follows. Okay, there is one more name. I gave you an example about regular and irregular reflection in the last lecture. The other name of irregular reflection is diffused reflection. Diffused. So if you have drawn this figure, please write the name over there. Diffused. तुम्हारे बुक में अगर ये फिगर बनाई है तो ये नाम लिख लेना. इरेगुलर के साइड में ब्रैकेट में लिखो diffused. And if you have not drawn this figure, please make it. ठीक है, ये हो गया रेगुलर इरेगुलर. इरेगुलर का दूसरा नाम है डिफ्यूज्ड. ठीक है. ओके, नाउ सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन. सो प्लीज पे अटेंशन. ठीक है. Suppose this is a mirror surface. This is a normal, this is incident ray, this is reflected ray. ठीक है. I will just name them A, O, B, N. Okay, this is PQ, mirror. Okay, can anyone tell me what is angle NOQ equal to? Right angle. Yes, absolutely correct. Right angle. It is 90 degree, this angle. And what is angle PON equal to? So 90 degree. That is also 90 degree. You are right. 90 degrees. Yes, you are right. You know why is this so? Because normal is always perpendicular to the
reflecting surface. Normal is always perpendicular to the reflecting surface. Okay? So that's why these angles are 90 degree. Acha, tell me one thing, Sanvi. Is this normal imaginary line or real? So it's an imaginary line. Yes, it is imaginary. It is not real. It is just an imaginary line for our, idea that how the reflection is happening. So normal is an imaginary perpendicular drawn on the reflecting surface at the point of incidence. At the point of incidence. ये नॉर्मल के बारे में थोड़ा एक आइडिया दिया मैंने तुम्हें, ठीक है. सेकेंड थिंग, ये तो नॉर्मल के बारे में हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव इज, suppose this is a mirror and this is a normal on it, and this is, let's say, the incident ray, the reflected ray, A, O, N, B, P, Q. See, Tanish, if you want, you can draw the diagram. But better than that, you just have to focus here, answer my questions, okay? So your concepts will be clear. Okay, Rashi, this angle is given to you as 35 degrees. Okay, you have to tell me the following angles. Angle I कितना है, angle R कितना है? Sir, angle I is 35 degrees, so angle R is also 35 degrees. Very good. So this itself is angle I, which is 35 degree, and this is angle R, which is also 35 degree. You are right. ठीक है, इसको याद रखना. Next question is for Tanush. Tanush, Yes, sir. this angle is 40 degree. Okay, you have to tell me angle of incidence and angle of reflection. Sir, angle of incidence will be 90 degrees minus 40, which will give us 50 degrees, which will make angle of reflection also 50 degrees. Very good. So this angle, since this whole angle is 90, out of 90, if I subtract this angle 40, then 90 minus 40 will give me 50 degrees. So this will be 50. And so geometry helps us to find the missing angle. So this angle of reflection will also automatically become 50. So this is 50, this is 50. Very good. Very easy, right? Very simple. Okay, one more example. So this is a very important example. Please pay attention, everyone. Siddharth, I want your help in this. So this is the case where ray of light is incident. Ray of light is incident normally on a surface. रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली का मतलब क्या होता है? सपोज ये नॉर्मल है ना, द रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट, इट इज अलोंग द नॉर्मल, मतलब लाइक दिस. द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट लाइक दिस. ठीक है, सो दिस इज द केस ऑफ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ सरफेस. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So remember what are my questions and answer them properly. Siddharth, question for you, number 1. What is the angle of incidence here?
So 90 degree. No, Siddharth, you are wrong. Let me go to Shubh. Yes, sir. एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है ये केस में? So 0 degree. वेरी गुड शुभ. कैसे बेटा? तुम्हारा आंसर करेक्ट है. कैसे? हाउ? हाउ इज इट जीरो? वो एक ही पॉइंट पे गिरा है सॉरी, क्योंकि सर वो सर मुझे नहीं पता कैसे बताऊँ. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं. Tanush, can you explain what is angle of incidence first? What is the meaning of angle of incidence? Sir, angle of incidence means the angle created between the ray of incidence and the normal line. Very good. And here the incident ray and the normal are coincident. Coincident matlab one on another, right? They are along the same line. They don't have any angle between them. So the angle of incidence becomes zero. समझ में आया सबको? देखो, नॉर्मल केस में देखो क्या होता है कि ये दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस. सॉरी, second set, but so the angle formed between angle of incidence and normal is the angle of incidence. ठीक है. अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे, आगे आ जाओ, यहाँ पे कोई एंगल बन ही नहीं रहा है दोनों के बीच में. द ब्लैक लाइन विच इज नॉर्मल and the red line which is incident ray, they are both one on another. They are coincident, lying on each other, right? So do they have any angle between them? Do they have any angle between them? Siddharth? No, sir. Yeah, that's why angle of incidence is zero. अब तुम्हें पता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है? एंगल I is equal to एंगल R. RV, can you tell me what will be angle of reflection here? RV. Sir, maybe on the same line. But what will be the value of angle of reflection? Zero. Yeah, it will be zero. It will be zero. So what is happening? एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर जीरो है तो रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर स्ट्राइक कर रही है मिरर को, तो ये रे ऑफ लाइट जब रिफ्लेक्ट होगी तो वो परपेंडिकुलर बन के वापस जाएगी, मतलब उसी पाथ पे वापस चली जाएगी. द रे ऑफ लाइट विल स्ट्राइक नॉर्मली एंड गेट रिफ्लेक्टेड बैक नॉर्मली. यू अंडरस्टूड? जिस पाथ से रे ऑफ लाइट स्ट्राइक कर रही है उसी पाथ से वापस चली जाएगी. सो द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी जीरो. Did you understand? ठीक है. So this is one important case जहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, जीरो बताना है. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा. द रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन वाया द सेम पाथ. दिस इज इंपॉर्टेंट. तो ये सारे क्वेश्चन मैंने जो पूछे अभी ये सब इंपॉर्टेंट थे. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो था उसको ध्यान में रखते हुए. Okay, now we have to complete this ray diagram. ये वाले रे डायग्राम को हमें कंप्लीट करना है. चलो मुझे हेल्प करो. तनिष. Yes, sir. तनिष मुझे बताओ, ये जो बी पे रे ऑफ लाइट स्ट्राइक कर रही है दैट इज इंसिडेंट रे, राइट? Yes, sir. तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे बी से निकलेगी, how much angle will it make with normal? If the reflected ray goes like this, how much angle will it make with the normal? That is my question. What is this angle equal to?
तनिष, तनिष, yes, please answer anyone. 30 degree. 30 degrees. So 30 degrees. Very good. So angle of incidence is equal to angle of reflection. ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा ज्योमेट्री का यूज करना पड़ेगा अपने को, ठीक है? सो बिल्कुल ध्यान दो इधर. ओके, नाउ सी दिस एंगल इज 90, करेक्ट है? ये वाला एंगल 90 है. तो मुझे बताओ ये अंदर वाला एंगल कितना होगा? ऊपर वाला 30 है, पूरा एंगल 90 है. यस, दिस विल बी 60. दिस विल बी 60, क्योंकि 90 के दो पार्ट्स है ना, ऊपर वाला 30 है तो नीचे वाला 90 माइनस 30 मतलब 60 होगा. अच्छा, ये एंगल तो 90 है, दोनों मिरर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है. सो ये जो ट्राइंगल दिख रहा है तुम्हें बी क्यू, मैं यहाँ पे नाम देता हूँ एस. बी क्यू एस ट्राइंगल में बाय एंगल सम प्रॉपर्टी कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एस? Do you know angle sum property? Sum of all the three angles of a triangle is 180. So angle B plus angle Q plus angle S 180 होगा, right? इसमें angle B कितना है? 60. angle Q कितना है? 90. angle S कितना है? नहीं पता है. So 60 plus 90 150 plus angle S is 180. So angle S होगा 180 minus 150. So angle S कितना होगा? 30. यस. सो ये वाला एंगल है 30 डिग्री. अच्छा, अब यहां पे मैं बनाऊंगा नॉर्मल. सो नॉर्मल विल लुक लाइक दिस. टेल मी हाउ मच विल बी दिस एंगल? 60. वेरी गुड, बहुत अच्छे. सो टेल मी इफ द रिफ्लेक्टेड रे goes in this direction like this, what will be the angle of reflection? 60. Very good. 60 degrees. Very good. Very good. So this is how you complete the ray diagram. ऐसा अगर क्वेश्चन आया तो कर पाओगे? रे डायग्राम कंप्लीट करना है, ज्योमेट्री का यूज करना पड़ेगा. तो चेक करें. सी सही है ना? इज इट करेक्ट? ये वाला जरा ध्यान से देखो फिगर. सो ये तुम्हें प्रैक्टिस करना है. यू हैव टू ड्रॉ दिस फिगर, बट फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग एंड देन यू विल प्रैक्टिस. ओके, इट्स वेरी इजी. सो व्हाट इज हैपनिंग, एक ऑब्जेक्ट है पॉइंट ओ के ऊपर, दिख रहा है ऑब्जेक्ट, मैंने हाईलाइट किया है. So two rays of light are coming from that object and striking the mirror at point A and point B. Can you see that? Two rays of light coming from object O strikes the mirror at point A and B. अब point A पे strike करके यहाँ पे एक छोटा सा नॉर्मल बनाया है और I1 is equal to R1, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होके जो रे ऑफ लाइट है दैट इज गोइंग इन द एक्स डायरेक्शन, ये वाला फर्स्ट रे ऑफ लाइट गेटिंग रिफ्लेक्टेड. द सेकेंड रे ऑफ लाइट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन वाई डायरेक्शन, दिस वन. ए और बी दोनों पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस है. ए और बी दोनों पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस है और वहां से रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और वो एक्स और वाई के डायरेक्शन में जा रही है. ठीक है, अब देखो नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि अगर ये रेस को पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया जाएगा वर्चुअल रेस को, तो ये जाके मिलती है आई पे. वर्चुअल रेस मतलब दे आर नॉट रियल, दे आर नॉट एक्चुअली मीटिंग, बट दे आर appearing to meet behind the mirror. They are appearing to meet behind the mirror. और उधर जहां पे वो रे ऑफ लाइट अपीयर कर रही है, मीट अपीयरिंग टू मीट हो रही है जहां पे, वहां पे इमेज बनेगी.
So you see the image of the object forming just opposite to the object, just in front of the object. If you see, there is an image, but it is behind the mirror. So this is how the reflection takes place in a plane mirror. This is how a reflection takes place in plane mirror. So this is the formation of ray diagram for formation of mirror or formation of point object, image of a point object in a plane mirror. अब तुम अगर थोड़ा इसको रियल लाइफ से रिलेट करोगे ना, इट इज द सेम थिंग. what happens is, when you look in mirror, the rays of light which are coming from any object, they get reflected from the mirror and they reach your eye, and you see an image of that object in the mirror, but that image appears to be behind the mirror. तुम अपने आप को मिरर में जब देखते हो, तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारे ही जैसा कोई इंडिविजुअल मिरर के पीछे खड़ा है, राइट? यू फील दैट. बट है क्या कोई वहां पे रियल में पीछे? इज देयर एनीबडी लाइक यू बिहाइंड द मिरर? नो, देयर इज नो वन लाइक यू बिहाइंड द मिरर. देयर इज नोबडी बिहाइंड द मिरर. सो क्या हो रहा है? मिरर के पीछे वर्चुअल इमेज बन रही है, बिकॉज द रेज ऑफ लाइट आर अपियरिंग टू मीट बिहाइंड द मिरर. सो दोज आर द वर्चुअल रेज. अब तुम्हें ये पूरा प्रोसेस समझना है. इसको हम लोग हायर स्टैंडर्ड्स में और अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना एक्सप्लेनेशन तुम्हारे लिए इनफ होना चाहिए कि हाउ द इमेज इज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर. द ऑब्जेक्ट, the rays of light coming from an object strikes the plane mirror, gets reflected following the laws of reflection and reaches our eyes. But the rays of light coming from the object after reflection, they appear to meet behind the mirror where the image of the object is visible. The image is virtual since the rays of light are not actually meeting behind the mirror. So when you look at yourself or your image in the mirror, there is nobody like you behind the mirror. It is just the image which is virtual. Okay? What you have to do is you have to draw the diagram right now. I'll give you 5 minutes. 5 minutes में ये diagram पूरा draw करके उसका फोटो लेके मुझे भेजना है अभी. Come on, start. Okay. So ये हो गया तुम्हारा first ray diagram for virtual image formed in a plane mirror. अच्छा, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक. ओके, द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल. वर्चुअल मतलब अनरियल. हमेशा याद रखना, जो मिरर के प्लेन मिरर के पीछे इमेजेस बनती है वो हमेशा वर्चुअल होती है, बिकॉज द रेज ऑफ लाइट अपीयर टू बी मीटिंग बिहाइंड द मिरर, दे डोंट एक्चुअली मीट. द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर. द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट. तुम अगर मिरर के सामने खड़े हो, ठीक है, जितना तुम्हारा डिस्टेंस मिरर से है उतना ही इमेज का डिस्टेंस होता है मिरर से. तुम अगर मिरर के पास जाओगे इमेज भी पास आएगी, तुम अगर मिरर से दूर जाओगे इमेज भी दूर जाएगी. सो द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर एंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम मिरर इज ऑलवेज द सेम. देन इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज सेम दिखती है, ठीक है. सो व्हेन यू सी योरसेल्फ इन द मिरर, you look exactly how you look. ठीक है, you might feel that you might be looking better but you don't. This is what you are. So इसको बोलते हैं कि मिरर दिखाना, मिरर को देखना basically. The image formed by plane mirror is erect. If you are standing on your feet in front of the mirror, your image will also be standing on its feet. ऐसा उल्टा इमेज नहीं दिखता है, वो सिर्फ वो क्या बोलते हैं, वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं यार, फन फेयर में वो मिरर्स नहीं होते, मिरर मेज में होते हैं, एसएल वर्ल्ड में होते हैं, वहां पे वो तुम्हें उल्टा दिखता है सब, क्योंकि वो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं. प्लेन मिरर में तुम्हें इरेक्ट इमेज दिखेगी.
The image in plane mirror is laterally inverted. Okay, this I want everyone to try. Try this at home. This is opposite of don't try this at home. You have to try this at home. So you have to stand in front of a mirror and you have to raise your right hand. ठीक है? Don't do it right now like you're taking some oath. You're not. Okay. Raise your right hand and you will see that somebody in the mirror, like you, of course, it's your image. So somebody in the mirror is raising his or her left hand. ठीक है? तो क्या हुआ? तुम्हें जो तुम्हारा राइट हैंड है, सामने वाले का, तुम एक काम कर सकते हो. You can stand in front of your friend or your family member and you raise your right hand and ask your friend or family member to imitate you. So when you raise your right hand, they will raise the same hand which is opposite to your hand, which will be their left hand. मतलब तुम्हारा right उनका left होता है और तुम्हारा left उनका right होता है. You see that? Right seems as left and left seems as right in plane mirror, in reflection. Just now I tried. अच्छा, you tried already? Yes, sir. What else you tried? सर अभी दिख रहा है क्योंकि हम लोग सामने बैठे हैं और लैपटॉप में मेरा खुद का हाथ लेफ्ट दिख रहा है. वेरी गुड. हाँ, तो ये तो कैम में भी वो राइट का लेफ्ट हो जाता है, बट मिरर में भी सेम होता है. द राइट अपीयर्स टू बी लेफ्ट एंड द लेफ्ट अपीयर्स टू बी राइट. और इसको अगर तुम्हें बहुत अच्छे से अगर इंस्पेक्ट करना है तो यू कैन टेक अ बुक एंड कीप इट इन फ्रंट ऑफ अ मिरर. तो बुक में जितने भी लेटर्स है ना, वो सारे ऐसे लैटरली इन्वर्टेड दिखेंगे. like let's say the letter F is like this. Okay, तो मिरर में देखोगे तो ऐसा दिखेगा. This is the mirror image. ये रियल, ये मिरर. ठीक है. अगर तुम देखोगे let's say P, तो मिरर में ऐसा दिखेगा. इसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पता है तुम्हें? कहाँ पे यूज होता है ये? नहीं पता? ओ हाँ, वो एम्बुलेंस उल्टा लिखता है जिसके लिए जब मिरर से देखे तो वो सीधा पढ़ पाए. एग्जैक्टली. एक्चुअली एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है, बट अगर तुम मिरर में देखोगे तो तुम्हें सीधा दिखेगा, बट एक्चुअली ऐसे उल्टा होता है. दिस इज हाउ एम्बुलेंस इज रिटन एंड दिस इज हाउ इट अपीयर्स इन द मिरर. समझ में आया? ये इसलिए बिकॉज लैटरल इन्वर्जन होता है. तो अगर पीछे से एम्बुलेंस आ रही है तो वी कैन गिव वे. वी शुड बी एबल टू रीड इट प्रॉपर्ली. सर स्कूल वैन्स में भी लिखा होता है. हाँ, लिखा होता है. वेरी गुड ऑब्जर्वेशन. मल्टीपल रिफ्लेक्शंस भी होते हैं. मल्टीपल रिफ्लेक्शंस मतलब एक बार रिफ्लेक्ट हुई लाइट दूसरी बार भी रिफ्लेक्ट हो सकती है, और उसका एग्जांपल है पेरिस्कोप. पेरिस्कोप इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट विच मेक्स द रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट ट्वाइस. और ये पेरिस्कोप जनरली होता है सबमरीन्स में यूज. सबमरीन्स में अगर सबमरीन के अंदर बैठे हुए लोगों को सी के बाहर क्या चल रहा है वो देखना है, सी के ऊपर लेवल के ऊपर, वाटर लेवल के ऊपर, तो वो लोग ऐसे पेरिस्कोप का यूज करते हैं जिससे उनको बाहर का सब दिखता है. और उसमें पेरिस्कोप के अंदर दो मिरर्स होते हैं विच आर पैरेलल टू ईच अदर एंड प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द ट्यूब और द वॉल्स ऑफ द पेरिस्कोप. तो इससे जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है वो नीचे बैठे हुए लोगों को क्लियरली दिखता है कि ऊपर क्या चल रहा है. सो दे यूज दिस काइंड ऑफ डिवाइस टू टू कीप अ वॉच outside. This is mostly used in submarines. So periscope is used to see over the heads of a crowd, maybe in a football match.
and it is used by soldiers sitting in a trench to observe the enemy activities outside or over the ground. It is used by Navy officers sitting in a submarine to see ships over the surface of water in the sea, even though submarine itself may be submerged underwater. और एक डबल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन है। हम जब हेयर कट के लिए जाते हैं तो पीछे का जो हेयर कट है वो कैसे दिखता है? दे होल्ड अ मिरर एंड सामने भी एक मिरर है, तो वहां से रिफ्लेक्ट होके हमें पीछे का जो हेयर स्टाइल है वो दिखाता है। आई डोंट नो व्हाट गर्ल्स दे यूज्ड टू डू, मे बी उनको भी दिखाते होंगे। इनअप्रोप्रिएट जेंडर नॉन इक्वालिटी. I should consult with Durva. Durva, I'm sorry. I just want to consult with you. So, if you take a haircut, do you ask them to show पीछे का hair देखने के लिए? So, do they show you like that? Isn't that awkward? Very awkward. It's not. Exactly. तो गर्ल्स को भी दिखाते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? मैं वही बोल रहा हूँ ना यार. बट तुम्हें पता होगा ना उनका स्टाइल, बॉयज को ऐसा दिखाए, देखो जल्दी ऐसा ऐसा करके दिखाते हैं, ऐसा नहीं दिखाते होंगे, थोड़ा सा ग्रेस होता रहेगा. हाँ है ना, थोड़ा दूर खड़े रह के, या फिर एक पूरा फुल लेंथ मिरर होता है. मुझे लगता है फोटो लेके दिखा देते हैं पीछे से. नहीं, ऐसा नहीं मतलब आई एम जस्ट गेसिंग. मेरे को नहीं, मैंने कभी देखा नहीं कि पीछे से ऐसा दिखा रहे हो. बॉयज को तो दिखाते हैं डेफिनेटली, और वो भी जब उनका मूड अच्छा हो हेयर ड्रेसर का. जनरली उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. पीछे से तेरे को क्या करना है, देखना है, बाल कटाया ना, चल निकल अभी यहाँ से. ओके, डोंट इवन bother about this multiple images as of now. It's not there. हाँ, kaleidoscope. This is very interesting. Have you ever played with a kaleidoscope? Okay. Yes. Yes, I had yeah. one. You still have it? ढूंढना पड़ेगा, बहुत टाइम जाएगा. ढूंढना नहीं, ढूंढो, चाहिए अपने को, क्योंकि ये मिलता नहीं है जनरली. सर नेक्स्ट क्लास में अगर मिलेगा तो हाँ प्लीज, नेक्स्ट क्लास में अगर मिलेगा ना तो एक काम करना कि नेक्स्ट क्लास से पहले ही मिलेगा तो उसको धूप में रखना, और फोन अंदर रख, मतलब फोन का लेंस उसके ऊपर रख के, जैसे कलाइडोस्कोप है, फोन रख दिया और उससे फोटो लेना, अंदर क्या डिजाइन बनती है हमें देखना है. वैसा इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं, बट स्टिल वी वांट टू सी. सो ये कलाइडोस्कोप में क्या होता है, the mirrors are inclined at different angles with each other inside the tube of kaleidoscope, and due to multiple reflections the pieces of glass or bangles which are scattered inside the tube of kaleidoscope, they create different designs. उससे एक कुछ ऐसी डिजाइंस बनती है जो बहुत ही ब्यूटीफुल होती है देखने के लिए. We can make a kaleidoscope ourselves. किसी को अगर ट्राई करना है तो घर पे बना सकते हैं, बट या ऑफ कोर्स इट्स अ प्रोजेक्ट. सो ओके, कितने लोगों को पता है कि सनलाइट इज नॉट वाइट कलर्ड ओरिजिनली, इट इज मेड अप ऑफ 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स. यस, आरवी नोज दिस, तनुष नोज दिस, और किसको पता है? ओके, सिद्धार्थ एंड सानवी. सो टेल मी एनीवन, व्हाट आर द 7 कलर्स जिससे वाइट लाइट बनी है? रेनबो कलर्स. सर रेनबो. हाँ रेनबो, लेकिन कलर्स का लिस्ट बताओ ना, नाम सर बताओ. रेड, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, येलो, वायलेट. सर इंडिगो, विबग्योर. वॉयलेट. वेरी गुड. कोई तो विबग्योर. फाइनली किसी में थोड़ा दिमाग है, विबग्योर बोल दिया. सर मैंने विबग्योर बोला था. हाँ, तो 2 लोगों में दिमाग यार, मना थोड़ी कर रहा हूँ मैं. सो विबग्योर है, विबग्योर, VIBGYOR. दीज आर द 7 कलर्स, वायलेट से लेके रेड तक, ठीक है, विच मतलब जिससे व्हाइट लाइट बनी. अच्छा, व्हाइट लाइट को अगर स्प्लिट करना है 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में, तो यू नो व्हाट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डू वी यूज? वी यूज prism. Yes, you are right. Prism. When you pass white light through a prism, it splits into its 7 constituent colors,
and the band of 7 constituent colors which you get is known as a spectrum. Spectrum बोलते हैं उसको. Rainbow is such a dispersion, example of dispersion of sunlight, and it is a natural phenomenon. जहाँ पे जो rain drops होते हैं, they act as prism and they help to disperse the white light. ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज ह्यूमन आई. तुम्हें पता होना चाहिए कि ह्यूमन आई कौन से पार्ट्स हैं इसके अंदर. द फ्रंट मोस्ट पार्ट ऑफ योर आई, द फ्रंट मोस्ट पार्ट इज नोन एज कॉर्निया. जो ब्लैक पार्ट है तुम्हारे आईज के सामने उसको बोलते हैं कॉर्निया. कॉर्निया के पीछे जो कलर्ड पार्ट है which is opaque actually, it is known as iris. Cornea is completely transparent, iris is opaque, it has color. और iris के बीच में जो छोटा होल बनता है वो होल को हम लोग बोलते हैं प्यूपिल, जहाँ से रेज ऑफ लाइट आई के अंदर एंटर करती है. अच्छा, प्यूपिल से एंटर करने के बाद रेज ऑफ लाइट जाती है लेंस में से. हमारे आईज में एक लेंस होता है विच हेल्प्स अस सी. ठीक है, ये लेंस को जो होल्ड करके रखते हैं उनको, वो मसल्स को बोलते हैं सिलियरी मसल्स. सिलियरी मसल्स. अच्छा, लेंस में से रे ऑफ लाइट पास होके रिफ्रैक्ट होती है, रिफ्रैक्शन होता है, और वो रेटिना पे जाके इमेज बनाती है. रेटिना इज इट्स लाइक अ स्क्रीन बिहाइंड द आई. ठीक है, यहाँ पे एक ब्लाइंड स्पॉट होता है. ब्लाइंड स्पॉट पे कोई भी रे ऑफ लाइट मीट नहीं करती, इसलिए उसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं. वहां पे इमेज नहीं बनती. उसके बाद है ऑप्टिक नर्व. ऑप्टिक नर्व जो विजुअल सेंसेशंस है उसको आई से लेके ब्रेन तक ट्रांसफर करता है, पहुंचाते हैं आई से ब्रेन तक. ठीक है, सो दैट इज योर ऑप्टिक नर्व. सो ये तुम्हारा आई का कंस्ट्रक्शन है. यू कैन गो इन डिटेल, इसमें सारे पार्ट्स का फंक्शन दिया हुआ है, बट फिर भी मैं ओवरऑल बता देता हूँ तुम्हें. फंक्शन वाइज अगर मैं तुम्हें बताऊं, अभी पार्ट्स बताए, फंक्शन बताता हूं. कॉर्निया का फंक्शन है वो रेज ऑफ लाइट को रिफ्रैक्ट करता है. आइरिस गिव्स कलर टू द आई एंड आल्सो प्रोटेक्ट्स much of light from entering the eye. Pupil is a small hole which allows the ray of light to enter through it. Lens again refracts the eye and focuses it on retina to form the image. Ciliary muscles hold the lens. Optic nerve sends the messages of the rays of light which are incident on the retina to the brain, so brain interprets it as an image. And blind spot is basically a location where no image is formed and you cannot see anything if the ray of light reaches blind spot. ठीक है, so these are the functions. यहाँ पे सारे फंक्शन डिटेल में दिए हैं, इसको एक बार गो थ्रू करो. पूरा थियरी है, दिस इज नॉट समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट. एक रॉड्स एंड कोन्स का छोटा सा पार्ट है, इसको याद रखना है तुम्हें. रॉड्स आर रॉड शेप्ड सेल्स प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ आई विच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट. सेंसिटिव टू डिम लाइट मतलब अगर किसी की आईज में रॉड्स की कमी है या रॉड शेप्ड सेल्स की कमी है तो वो नाइट ब्लाइंडनेस से सफर करेगा. नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात को नहीं दिखता ठीक से, उसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं. तो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है रॉड्स. और कोन्स आर कोन शेप्ड सेल्स प्रेजेंट इन द रेटिना विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड दे ऑल्सो कॉज द सेंसेशन ऑफ कलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन आवर आईज. तो कुछ लोग कलर ब्लाइंड होते हैं, उनको कलर्स में डिस्टिंग्विश नहीं हो कर पाते वो ठीक से, तो उनके आईज में कोन्स की कमी है या कोन्स माल फंक्शन हो गए. ठीक है, सो कोन्स बेसिकली हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट कलर्स. अच्छा, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज परसिस्टेंस ऑफ विजन. तुम जब आईज बंद करते हो, इफ यू क्लोज योर आईज, you will still be able to see the object in front of you for some time. मतलब तुम्हारे सामने जितनी भी चीजें हैं वो तुम्हें कुछ देर तक दिखती रहती है. मतलब आईज में वो विजन परसिस्ट करता है
अबाउट सम टाइम, ठीक है, दैट इज 1/16 ऑफ अ सेकेंड, तुम्हारी आईज में वो विजन रहता है. So the ability of an eye to continue to see the image of an object for a very short duration, even after the object has disappeared from the view, is called persistence of vision. तो इसका तुमने एक देखा होगा डेमोन्स्ट्रेशन. एक कार्डबोर्ड ले लो छोटा सा, जिसमें एक साइड में बर्ड है और दूसरे साइड में केज है, बर्ड केज, और अगर तुम इसको बहुत क्विकली रोटेट करोगे, यू विल सी द बर्ड इन द केज. हैव यू सीन दिस? ये किया है किसी ने एक्सपेरिमेंट ट्राई, या देखा है कहीं पे? नहीं किया है? करो यार, तुम्हें अभी बनाओ तुम एक कार्डबोर्ड, अभी मत, मतलब केज क्लास वाला के नहीं बाद. किया है, पर वैसा ही कुछ टाइप का किया है. नहीं, एक तुम और एक ट्राई कर सकते हो, तुमने देखा भी होगा, ये एक बुक आती है, वो बुक पे हर एक पेज पे अलग अलग ड्राइंग होती है, ठीक है, उसको अगर फ्लिप करोगे फटाफट, मतलब ऐसे, सर हाँ, तो वो पूरी एक स्टोरी दिखेगी तुम्हें, सीक्वेंस ऑफ पिक्चर्स. और जो तुम मूवी देखते हो उसमें भी वही होता है, जो रील्स होती थी पहले, दे रोटेट द रील्स फास्ट एंड वी सी एवरीथिंग एज मूविंग एज अ मूवी. एक्चुअली दोज आर सेपरेट पिक्चर्स स्टिच्ड टुगेदर. सो दैट हैपेंस ड्यू टू परसिस्टेंस ऑफ विजन. तुम एक चीज तो कर ही सकते हो, एक कार्डबोर्ड ले लो, उस पर एक साइड बर्ड बनाओ, एक साइड केज बनाओ बिल्कुल उसके पीछे, और उसको क्विकली रोटेट करो एक स्टिक से अटैच करके, तो यू विल सी द बर्ड इन द केज, एंड दैट इज ड्यू टू परसिस्टेंस ऑफ विजन. यहाँ पे लोग ने बोला है कैसे बनाते हैं, तो यू कैन ट्राई इट. अच्छा, हमारे नॉर्मल ह्यूमन आई की जो रेंज है, रेंज ऑफ विजन, उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. सो 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है. एक तो होता है फार पॉइंट जो इन्फिनिटी पे होता है, और एक होता है नियर पॉइंट विच इज एट विच यू कैन रीड विदाउट मच स्ट्रेस, ठीक है, दैट इज 25 सेंटीमीटर. सो वेरी फार इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर फ्रॉम योर आईज. तो तुम जब भी पढ़ते हो तो तुम्हें अपनी जो बुक्स है वो आईज से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे अगर रखोगे तो तुम्हें क्लियरली दिखेगा. उससे नजदीक रखोगे तो दिखेगा तुम्हें क्लियरली, बट द प्रॉब्लम इज दैट you will strain your eyes more, and your eyes will get tired quickly. So you should always maintain a healthy distance of 25 centimeter while you are doing any near work, like reading, writing, or anything. And far, of course, you can see without any stress, definitely. Okay, defect of eyes दी है. See, कुछ defects होती है, जैसे कुछ लोग glasses पहनते हैं. So it's not a disease, it's just a simple defect of eye, जो glasses पहनने से ये defect निकल जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं myopia. Mostly myopia, which is short sightedness, या फिर the defect of vision in which a person cannot see far away. That is corrected by putting some glasses or lenses, spectacles, ठीक है. और ये जो lenses है उनको बोलते हैं concave lenses और diverging lenses. इसके बाद है हाइपरमेट्रोपिया. वो एक डिफेक्ट ऑफ विजन है विच इज लॉन्ग साइटेडनेस, वेर यू कैन नॉट सी एनीथिंग नियर, एंड दैट इज करेक्टेड बाय सम लेंसेज विच आर कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंसेज. ये सब डिटेल में पढ़ने वाले तुम क्लास 10th में, ठीक है. फिर एक कैटरेक्ट नाम की एक कंडीशन है जिसमें जो लेंस होता है आईज का वो थोड़ा क्लाउडी हो जाता है. ये जनरली ओल्ड एज्ड पीपल को होता है, सो उसको हम लोग कैटरैक्ट बोलते हैं. उससे ऑपरेशन करके हमें रिमूव करना पड़ता है. फिर एक छोटा सा पार्ट दिया है केयर ऑफ द आईज. इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, देयर आर अराउंड 8 पॉइंट्स. यू कैन रीड दिस, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर आईज, वेरी सिंपल. फिर कुछ दूसरे एनिमल्स की आईज को डिस्कस किया है, जैसे क्रैब की आईज बहुत छोटी होती है, बट दे कैन सी even from behind because the eyes can rotate. That's what they are saying. Butterflies की बहुत large eyes होती है, but actually उसमें thousands little eyes होती है. फिर owl की जो eyes होती है वो night में बहुत clearly उसको देखने में help करती है. And जो डे बर्ड्स होते हैं जैसे काइट और ईगल, उनकी आईज ब्राइट लाइट में
उनको हेल्प करती है हंट करने के लिए. सो दे आर नॉट मच अफेक्टेड बाय द सन्स हार्श रेज, and but in dim light they are not very good, so they rest in the night. Okay, ये एक एक्स्ट्रा पार्ट है. विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स कैन रीड एंड राइट. जैसे कुछ लोग जो लोग देख नहीं सकते, जिनके पास आई साइट नहीं होती है, they can still read and write using language which is touch sensitive language, which is known as braille. Braille is a special language created for them, special system basically. जो एक there was a personality called Louis Braille, who himself was a visually challenged person. He created for other visually challenged people so that they can at least read and write, ठीक है, using braille. So इसमें एक बहुत बड़ा नाम है ऐसी पर्सनालिटी का who has achieved a lot despite being blind, that is Helen Keller, who was an American lecturer and author. So yeah, that is the chapter. काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था, और इनिशियल पार्ट में थोड़ा टेक्निकल था, बट देन इट इज़ मोस्टली थियरी. ठीक है, सो दिस चैप्टर इज ओवर. आई विश टू टेक सम एक्स्ट्रा लेक्चर्स दिस वीक और वीकेंड, सो आई विल मैसेज इन द ग्रुप एंड देन विल डू द नेक्स्ट चैप्टर एज वेल, सोलर सिस्टम वाला, एंड विल फिनिश साइंस. सो नेक्स्ट वीक वी कैन फिनिश द रिमेनिंग पार्ट ऑफ मैथ्स. ठीक है, चलो गाइस.